Assalamu alaikum. The topic of our lecture is global paradigm shift and contemporary status of China. In this lecture, we are going to explore that how the world is shaping itself after the pandemic, how the world economy is actually economies are projecting themselves, how they are protecting themselves, what are the initiatives they are taking to come at their position जिस पे वो पहले से मौजूद थी, or what is the status of China, how Chinese economy got affected by the global pandemic, and what are the ways they are opting for sustenance of their economic power, because China was considered and still is considered as the second largest economy, and it's one of the rising stars as far as economy is concerned, because right now as US is the number one in economic systems, but China is at the lead to take the leading position of US. Okay, so before embarking into the topic, we must know that what global politics means. The global politics or international politics is an arena where all the team players states are major actors. जी, global politics के अंदर जो सबसे important actors होते हैं वो states होते हैं. Whatever is happening in the states is very much important for international politics. What kind of relations states are making? Are they having bad relationships? Are they engaging into the wars? Are they engaging into a diplomatic relation? Are they more focused or prone towards peace? But that is what global politicians are actually focusing on, and it is all about global politics. The international politics shaped by the behavior of these states. These actors are in such a place where realists believe that there is no world police or laws. Laws, in their opinion, are mere scrap papers. Okay, रियलिस्ट जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो ये इंटरनेशनल एक्टर्स हैं जो कि स्टेट्स हैं वो एक ऐसी जगह में मौजूद हैं जहाँ कोई भी लॉ नहीं है. देयर इज़ नो वर्ल्ड पुलिस, और जो लॉज बनाए जाते हैं वो स्क्रैप पेपर होते हैं. ये स्टेट्स जो हैं उन लॉज को फॉलो नहीं करते हैं. जबकि however the perspective of liberals is totally different, as they believe that the world is a zoo where all the states are bound with the laws, rules and regulations. Whether liberals believe that world is like a zoo and these states are running on the rules and regulations which are set by international law. अच्छा, लेक्चर में फ़र्दर हमें जो है वो प्रोसीड करने से पहले हमें जानना होगा व्हाट रियलिज्म एंड लिबरलिज्म मीन्स, बिकॉज these are very important terms as far as international politics is concerned, and you are going to hear them out in every newspaper or in electronic media or social media. Realism is a political thought of international relations which portrays negative image of world politics. जी, ये नेगेटिव इमेज देता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का. रियलिस्ट बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ बेस करती है ह्यूमन नेचर पे विच इज़ वेरी नेगेटिव. ह्यूमंस आर बाय नेचर ऑपरेसर्स. दे बिलीव दैट दे आर ब्रूटल, पेसिमिस्ट एंड सेल्फिश. ह्यूमंस वॉट एवर दे डू इज़ फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. वो दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए ही जो है वो काम कर रहे होते हैं. वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन वॉर एंड पीस. जी, इश्यूज़ ऑफ वॉर एंड पीस है उसी पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो डील करती है. यानी या तो स्टेट्स जंगे कर रहे होते हैं या फिर जो है वो जंगों की तैयारी कर रहे होते हैं. यानी इनका मानना ये है कि कल्चर, सोशल इश्यूज़, आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ये भी किसी भी सूरत इम्पॉर्टेंट नहीं है. अच्छा, there is no place for economy, culture and social structure of the society. Citizens are basically like slaves of the state men or state women. Competition between state is unending.
जी, सिटीजन्स जो होते हैं वो एक स्लेव्स की तरह होते हैं और उनको अपने मफाद के लिए जो है वो लीडर्स इस्तेमाल करते हैं और उनका कोई काम नहीं है। उनके फ़ायदे के लिए स्टेट को ज़रूरी नहीं है कि कोई काम करे, रियलिस्ट बिलीव करते हैं। और जो कंपटीशन है स्टेट्स के दरमियान, यानी मुसलसल कंपटीशन रहता है, कभी भी वो फ्रेंडली तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो पीसफुल नहीं होते, हमेशा कम्पीट ही करते रहते हैं। अच्छा, अब हमें देखना पड़ेगा कि लिबरलिज्म जो है वो क्या सोचता है। Basically, liberalism is also a political thought of higher, and it gives optimistic view of human nature. It believes that human beings are good by nature. They are not cruel. Okay, although there are some cruel people in the world, but most of the people in the world are good by nature, and they are altruistic. They want to do good for people. They want to help others. They don't want to kill. They actually are selfless as well. So there is always goodness in the world. Okay, world politics is not only based on war and peace, but also economy, culture, environment, societies are important. Yani they also believe that that war and peace is important, but they believe that with the importance of war and peace, we cannot ignore the importance of environment, economy, culture, society, because उसके बगैर भी जो है वो वर्ल्ड मुकम्मल नहीं होती। Liberalist believes that citizens are driving force of the states. Okay, they are actually like the drivers of the states, and they work for the sake of the state, and citizens are very much important. Competition is inevitable, however diplomacy leads to better relation of state. Citizens basically ये बिलीव करते हैं कि कंपटीशन जो है ना स्टेट्स के दरमियान वो तो अनएंडिंग है वाकई, और ये भी मानते हैं रियलिस्ट की बात, मगर कहते हैं कि डिप्लोमेसी के थ्रू जो है स्टेट्स आपस में बेहतर रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन 20th century. What was the face of international politics in the era of 20s? ठीक है, after the advent of modernization with the emergence of industrial revolution, the paradigm of world started taking different shifts. जी, बेसिकली हमें पता है कि 20वीं सदी के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी, मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, और उसके स्टार्ट के साथ साथ जो है ना वर्ल्ड ने अपने अंदर तब्दीली लाना शुरू कर दी थी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज होना शुरू हो गई। वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने जो है वो डिफरेंट शिफ्ट्स ली, और ज़्यादातर जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो फोकस हो गया वो इकोनॉमिक्स हो गई, यानी जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव था वो थोड़ा सा दब सा गया, और जो इकोनॉमिस्ट के व्यूज़ जो थे वो ज़्यादा जो है वो हमें नज़र आने लगे प्रोमिनेंट। Different theories started emerging. The theories were capitalism, Marxism, iron law of wages. ये हमें बहुत सारी theories भी जो है वो 20वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के एडवेंट के बाद नज़र आना शुरू हो गई। अच्छा, let's talk about these theories. That what are these theories? Capitalism. Capitalism, also called free market economy or free enterprise economy, economic system dominant in the Western world since the breakup of feudalism. जी, capitalism is such a system which is based on free market economy, and mostly all the production and means of productions are privately owned. Okay, and basically ये जो है ज़्यादातर डोमिनेंट जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में पहले फ्यूडलिज़म हमें नज़र आता है, और ये फ्यूडलिज़म जो है वो बहुत ही ईविल सिस्टम था एक ज़माने में, क्योंकि यहाँ पे मास्टर और स्लेवरी का निज़ाम था और लोगों को उतनी वेजेस नहीं मिलती थी जितनी मिलनी चाहिए। This system of capitalism was actually expressed in an article which is known as an inquiry into the nature and cause of wealth of nations. ठीक है, और इसको देने वाले एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और फिलोसफर जिनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने फर्दर एक बुक भी लिखी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, और उसमें कम्प्लीटली इन्होंने फिर बताया कि जो है कैपिटलिज्म कैसा निज़ाम है और इसको क्यों इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू फ्यूडलिज़म।
ठीक है। द पॉलिसीज ऑफ 19th सेंचुरी पोलिटिकल लिबरलिज्म इंक्लूडिंग फ्री ट्रेड, साउंड मनी, द गोल्ड स्टैंडर्ड्स, द बैलेंस बजट्स एंड मिनिमम लेवल ऑफ पुअर रिलीफ, ठीक है। The ideology of capitalism was opted by many due to worst impact created by feudalism। जी 20th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे लोगों ने जो है कैपिटलिस्ट जो है वो आइडियोलॉजीज़ को ऑप्ट किया, अपनाया, क्योंकि फ्यूडलिज्म ने बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला हुआ था। अच्छा, उनको लगता था कि कैपिटलिज्म की वजह से जो है वो लोगों को सही वेजेस मिलेंगे, आप जितनी नौकरी करेंगे उतना कमाएंगे। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ज़्यादा बनती गई, ओके, तो जो है लोग बहुत सारे अर्बन एरियाज़ में आना शुरू हो गए रूरल एरियाज़ से, और जो है इस तरह से कैपिटलिज्म ने मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड हासिल कर लिया वेस्टर्न वर्ल्ड में। द मोर वर्कर्स इंक्रीज द मोर एक्सप्लॉयटेशन बाय द कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज। और जैसे जैसे ज़्यादा वर्कर्स आना शुरू हो गए, उसी तरह से जो कैपिटलिस्ट क्लास थे, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, उन्होंने जो है वो लोगों के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया, एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दी। उसी ज़माने में एक बहुत ही ख़तरनाक जो है वो थ्योरी दी गई थी, आयरन लॉ ऑफ वेजेस के नाम से, जो कि डेविड रिकार्डो ने दी थी। और ये थ्योरी जो थी वो बेसिकली बहुत ही ईविल थ्योरी मैं तो मानती हूँ ये है। The iron law of wages is a proposed law of economics that asserts that real wages always tend in the long run towards the minimum wage necessary to sustain the life of the worker. Okay. The theory was presented by David Ricardo. He believed that workers should be given low wages so that they remain dependent upon the owners. हमेशा लोगों को इतनी इनकम दी जाए जो कि जो है वो मिनिमम हो, यानी वो बस किसी ना किसी तरह अपना गुजारा कर लें, मगर वो लग्जरीज़ को एंजॉय नहीं कर सकें। द रीज़न वॉज दैट इज़ हाउ दे कैन रिमेन लॉयल, द वर्कर्स कैन रिमेन लॉयल। और डेविड रिकार्डो का ख्याल था कि इफ़ यू गिव देम बेटर वेजेस सो देयर स्टैंडर्ड of living may increase and then they won't be interested in working for the same position। जी, उनके स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे, फिर वो सेम पोजीशन पे काम नहीं करना चाहेंगे, लॉयल नहीं रहेंगे। तो उनका ख्याल था कि इनको कम से कम तनख्वाह दी जानी चाहिए। Also, this strategy will create a monopoly to manipulate workers according to the needs of the owners। जी, आप वर्कर को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और अपने मर्ज़ी से उसको ज़्यादा काम भी दे सकते हैं, और वो मजबूरन वो सारा काम करेगा भी। इस तरह से हमें अभी भी नज़र आता है कि बहुत सारे इकॉनमिस्ट, बड़े बड़े इकोनॉमिक जायंट्स हैं, वो यही काम कर रहे होते हैं कि अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको ज़्यादा सैलरीज नहीं देते और फिर साल में एक दफ़ा बोनस दे के खुश कर देते हैं। बेसिकली वो बोनस देने का जो आइडिया होता है वो यही होता है कि आप सारा साल तो उनकी ड्यू वेज नहीं दे रहे होते, तो आपने अच्छा खासा कमाया हुआ होता है, तो फिर क्या होता है कि आप जो है बाय द एंड ऑफ ईयर बोनस दे के उन्हें खुश कर देते हैं, और वो एक्चुअली पैसा उन्हीं लोगों का होता है, मगर उनको ये लगता है कि आप जो है वो फैक्ट्री ओनर ने या जो उनका कंपनी ओनर है उन्होंने उनको रिवॉर्ड दिया उनके अच्छे काम पे, और 2-4 तारीफ़ी कलमात क्योंकि आप अदा कर, वो लोग फैक्ट्री ओनर्स जो हैं वो अदा कर देते हैं। तो ये जो है वो एक या फिर जो है वो जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनको थोड़े से पैसे दे देते हैं। तो ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं, और आयरन लॉ ऑफ वेजेस उस ज़माने में मुतारिफ़ करवाया गया था, और हमें नज़र आता है कि अब तक ये टेक्निक्स मौजूद हैं। ओके, then there was another theory that was with the name of Marxism. It's a very famous theory. In the 19th century, a new class of industrial workers whose generally miserable condition inspired the revolutionary philosophy of Karl Marx। जी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो उसके बाद जो है वो साथ में एक्सप्लॉयटेशन को भी जो है वो नोटिस किया गया। ऑल्दो कि कैपिटलिज्म जो है वो कहता था कि जो है वो फुल वेजेस लोगों को दी जाती हैं, मगर जितने ज़्यादा लेबर बढ़ते गए तो कम से कम वेज पे भी लोग जो है वो काम करने के लिए तैयार हो गए, और जिसकी वजह से जो है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो
बिल्कुल गिर गया। और स्पेशली जब ख़वातीन वर्कर्स ने जो है वो काम करना शुरू किया तो वो आधी पेमेंट पे काम कर लेती थी, और उससे जो है मज़ीद जो है वो फैक्ट्री ओनर्स ने एक्सप्लॉयटेशन कर दी। ज़्यादातर प्रॉफिट खुद रख लेते थे और बहुत ही थोड़ा जो है पे करके फ़ायदे में रहते थे। इसी तरह से फिर जो है वो बच्चों ने जब काम करना शुरू कर दिया, चाइल्ड लेबर की बात आई तो उसके बाद तो ख़वातीन से भी कम पैसों में जो है वो चाइल्ड लेबर पे काम हो जाता था। तो ये सब चीज़ें देख के जो है, और ये सब एक्सप्लॉयटेशन देख के कार्ल मार्क्स ने जो है वो अपनी थ्योरी प्रेजेंट की। ऑल्दो कि इन्होंने पहले से ही प्रेजेंट करना शुरू कर दी थी, क्योंकि फ्यूडलिज्म में भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। मगर फर्दर जब इन्होंने कैपिटलिज्म की एक्सप्लॉयटेशन देखी तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी, जिसको मार्क्सिज्म कहा जाता है। Karl Marx believed that world is divided into two economic classes, that is bourgeois and proletariat. जी, bourgeois और proletariat क्लास में जो है वो डिवाइडेड है वर्ल्ड। और बेसिकली bourgeois क्लास जो है वो बेसिकली फैक्ट्री ओनर्स और एलिट्स को जो कंसिस्ट करती है, एंड proletariat consisted of workers and middle class people. ये दो क्लासेस हैं, और जो है bourgeois बेसिकली प्रोलेटेरिएट क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, सारा फ़ायदा खुद रख लेती है, सारा नफ़ा खुद रखती है, और प्रोलेटेरिएट को बस ज़िंदगी गुजारने के लिए चंद जो है पैसे देती है। मार्क्स ने एक और बात कंक्लूड की, जिससे को मैं बुरा गलत नहीं समझती, दैट वर्ल्ड इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू क्लास स्ट्रगल। दुनिया में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो क्लास स्ट्रगल की वजह से, या पीपल आर फाइटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ क्लास स्ट्रगल। दुनिया में क्योंकि रिसोर्सेज तो बहुत हैं, मगर रिसोर्सेज की अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जिसकी वजह से जो है वो लोग लड़ने पे मजबूर हो गए। और अगर क्लास स्ट्रगल या क्लास कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कर दिया जाए, यानी मिडिल क्लास अपर क्लास का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए और सब इक्वल हो जाएं, तो शायद कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो जाएंगी और जंगें भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, इसकी बात को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो है दुनिया में हमें नज़र आती है बड़ी बड़ी जंगें हुई और अब भी नज़र आ रही हैं, मगर जंगें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो क्यों हो रही हैं? जंगों का रीज़न क्या है? जंगों का रीज़न यही है कि बेसिकली वॉर्स जो हैं या तो वो टेरिटरी को हासिल करने के लिए होती हैं या नेचुरल सोर्स को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। ज़्यादातर वही मीन्स हैं जो मटीरियल गेंस के लिए हैं। तो ये सब अगर हम इक्वल तमाम स्टेट इक्वल हो जाएं तो इन मटेरियल गेंस के लिए जो है वो फ़ाइट नहीं करेंगे वो, और जो है वो जो पावर की एक जो है वो जिसको कहते हैं ग्रीड होती है, वो स्टेट्स अपने अंदर से ख़त्म कर लें तो सुपर पावर स्टेट्स भी जो हैं वो फर्दर इस किस्म की जो है वो कोशिशें नहीं करेंगे और दुनिया में फर्दर अमन व अमान जो है वो कायम हो सकता है। अच्छा, चलें, आफ्टर नोइंग ऑल दीज थियरीज नाउ लेट्स टॉक अबाउट चाइना एंड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस इन चाइना। चाइना कैसे जो है वो वर्ल्ड में जो है एक इकोनॉमिक जायंट बन गया? क्या चाइना हमेशा से इकोनॉमिकली सुपीरियर था, या जो है अभी चंद सालों में ही चाइना ने अपनी इकॉनमी को इतना ज़्यादा जो है वो मजबूत कर लिया है? इसको हम जो है वो अब फ्यू स्लाइड्स के अंदर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। चाइना को इंडिपेंडेंस 1949 में मिल गई थी। ओके, चाइना गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन ईयर 1949। इनिशियली चाइनाज इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म। जी, चाइना इज़ अ सोशलिस्ट स्टेट और अभी भी सोशलिस्ट है, और इनिशियली उसके इकोनॉमिक सिस्टम कम्प्लीटली जो है मार्क्सिस्ट था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था, और जो है वो प्राइवेट ओनरशिप पे बिलीव नहीं करते थे, प्राइवेट एंटरप्राइज पे, फ्री ट्रेड पे बिलीव नहीं करते थे, और बहुत ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स थे। यानी वो कम्युनिस्ट एंटी कम्युनिस्ट स्टेट्स के साथ या नॉन कम्युनिस्ट स्टेट्स के साथ जो है वो ट्रेडिंग करना गलत समझते थे। ठीक है, तो ये सारी वजूहात की बिना पे जो है चाइना की इकॉनमी वो बूस्ट नहीं हासिल कर पा रही थी जिस बूस्ट में अभी वो है। ठीक है, बिटवीन 1958 एंड 1962 45 मिलियन पीपल स्टार्व टू डेथ इन चाइना। 45 मिलियन लोग जो है 1958 से 1962 के दरमियान में उनकी डेथ्स हुई थी चाइना के अंदर, एंड दैट रिजल्टेड इन द लार्जेस्ट सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट इन हिस्ट्री। ये एक लार्जेस्ट सोशलिस्ट एक्सपेरिमेंट था हिस्ट्री में।
माओ जेडोंग ने उस वक्त के लीडर थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से। मगर चाइना के लिए ये एक्सपेरिमेंट उस वक्त डिज़ास्टर का काम किया था और चाइना बहुत ही बुरा जो है वो ज़मीन पे आ गया। However, everything changed when China realized that without the adoption of ideals of capitalism, its economy cannot grow. जी, चाइना ने फिर रियलाइज़ किया कि वह अगर हम कैपिटलिस्ट व्यूज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकते और तरक्की नहीं कर सकते। तो अभी भी चाइना सोशलिस्ट स्टेट तो है, इंटरनली चाइना सोशलिज़म को फॉलो करता है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, और जो है फैक्ट्रीज़ जो हैं वो नेशनलाइज्ड हैं, यानी द फैक्ट्रीज़ आर ओन्ड बाय स्टेट लीडर्स, यानी स्टेट के लीडर्स नहीं, स्टेट्स के अंडर कंट्रोल हैं। स्कूल्स आर अंडर कंट्रोल बाय स्टेट, हॉस्पिटल्स आर अंडर कंट्रोल बाय स्टेट, कोई भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। मगर जो है वो जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं चाइनीज़, वो बेसिकली वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के मॉडल्स पे और उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं। So the China opted the ways of free economy in the year of 1970s. ठीक है। Today China is world's leading export nation, ahead of US and Germany। जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जर्मनी से ज़्यादा आगे चाइना है और लीडिंग एक्सपोर्ट नेशन है, यानी ज़्यादातर लोग जो है माल चाइना से ख़रीदते हैं। अगर आप देखें तो चाइना का माल आपको हर दूसरे ममालिक में नज़र आता है। इवन अगर आप फ्रांस को विज़िट करें तो वहाँ पे भी अगर आईफिल टावर का आप मिनिएचर को देखेंगे तो दैट वुड बी मेड इन चाइना। अगर आप यूएस जाते हैं तो यूएस में भी मेड इन चाइना मोबाइल्स हैं, मेड इन चाइना लैपटॉप्स मिलेंगे आपको। और चाइना जो अपनी चीज़ों को प्रोडक्ट्स को क्रिएट करता है वो हर स्टेट और हर रीजन के लिहाज से करता है। अगर वो पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो क्वालिटी नहीं होगी जो प्रोडक्ट्स वो यूएस या जर्मनी में सेल आउट कर रहा होगा, उनकी क्वालिटी इंतहा से ज़्यादा अच्छी होगी। तो ज़रूरी ये हमारे यहाँ जो आजकल मशहूर है और लोग जो उस बात बिलीव करते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलायबल नहीं होते, तो दैट इज़ रॉन्ग। इफ़ यू बाय हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ चाइना, so they are far more reliable than the products made by US और कोरिया। तो ये बात कहना गलत है। Above all, never before in history have so many people escaped poverty in such a short time in the past decades in China। जी, अगर हम ये बात को देखें तो दुनिया में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसने इतनी जल्दी जो है वो गुर्बत को हराया और जो है वो अपनी उसकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा जो है वो सुपीरियर हो गई और इतने कम टाइम के अंदर। It is widely believed that China's success is based on uniquely Chinese third way, a political and economic model that occupies the ground between capitalism and socialism। चाइना ने जो है ना पहला रास्ता अख्तियार किया ना दूसरा, चाइना ने थर्ड वे जो है वो अख्तियार किया है। इट हैज़ ऑप्टेड दैट एंड दिस थर्ड वे हैज़ एक्चुअली लेड इट टू बिकम एन इकोनॉमिक जायंट ऑफ द वर्ल्ड। और जो है वो रास्ता जो है वो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक थ्योरी है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान से ही जाता है। China has progressively embraced the tenets of free market economic, introduced private ownership and gradually reduced the influence of once all power state over the Chinese economy। चाइना ने बड़े बड़े बिजनेसेस को लोगों को ओन करने दिया है अब, मगर फिर भी आम लोगों के लिए वही सोशलिस्ट असूल मौजूद हैं। अच्छा, कैपिटलिज्म के वेज जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में टोटली ऑप्ट किए हुए हैं। फ्री ट्रेड है, यानी बैरियर लेस, ज़्यादा टैक्स नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं चाइना को आगे बढ़ाने में, टैरिफ फ्री ट्रेड है तो उस आगे बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। Now, presently, China is regarded as the world's economic giant, though many economists still believe that US is ahead of China
but the way Chinese have opted the policy of economic imperialism has surpassed its economic boundaries. Gee, now there is one more term here which you need to see. That term is economic imperialism. What does economic imperialism mean? Economic imperialism means that you actually try to control the economies of other states by using your economic power. चाइना ने जिस तरह से इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट डिफरेंट स्टेट्स में की हुई हैं और उन इस इन्वेस्टमेंट्स की वजह से स्टेट्स अर्न भी कर रहे हैं, मगर ज़ाहिर है कि जो इन्वेस्टमेंट करता है फ़ायदा उसी को सबसे ज़्यादा होता है। जैसे सी पैक आपको नज़र आता है, सी पैक के अंदर जो भी सी पैक का काम हुआ है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है पाकिस्तान के लिए, मगर उसमें बेनिफिट चाइना को भी मिल रहा है। इसी तरह से गवादर पोर्ट जो चाइना को हमने जो बेचा है, इसी तरह से चाइना को हम देखें तो अफ्रीकन स्टेट्स में भी मौजूद है और चाइना ने अपना कंट्रोल जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बहुत आसानी से फैला लिया है। अच्छा, China's approach is to use economic power to control the world. Many politicians and economists in the world believe that the world is under control by the economists, not by the political scientists. जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दुनिया में बिलीव किया जाता है कि वर्ल्ड जो है वो इकोनॉमिस्ट जो है वो अब कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि पॉलिटिशियंस। पहले ज़माने में कहा जाता था पॉलिटिशियंस जंगें करके दुनिया को कंट्रोल करते हैं, मगर अब जंग करने की ज़रूरत ही नहीं है जब आपके पास दूसरा तरीका है वर्ल्ड को कंट्रोल करने का। सो दे आर यूजिंग इकोनॉमिक पावर, सॉफ्ट पावर टू कंट्रोल द वर्ल्ड। अच्छा, एक बहुत मशहूर जो है कोटेशन है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, दैट राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर्स इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिस्टम्स। जी, आपकी इकोनॉमीज़ पे ही बेस करता है राइज एंड फॉल ऑफ द एम्पायर्स। ठीक है, तो दुनिया में बड़ी बड़ी एम्पायर्स जो हैं वो इकॉनमी उनकी वीक होने की वजह से तबाह हो गई और बड़ी बड़ी एम्पायर्स जो हैं क्रिएट हो गई। रशिया को अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर के बाद जो डिसइंटीग्रेट हुई है रशिया, तो उसका मेन रीज़न भी यही था कि रशिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा जो है वीक हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेपनाइजेशन कर रहे थे, बहुत वेपन डेवलपमेंट कर रहे थे और बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी ज़्यादा डिफेंस को बढ़ा सकें ताकि वो यूएस से मुकाबला कर सकें। उसकी वजह से क्या हो गया हुआ कि रशिया का जो इन्फ्लुएंस था वो जो अपनी इकॉनमी, जो अपने पैसा खर्च करती थी अपने पेरिफेरी स्टेट्स पे, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थे, वहाँ पे कम होना शुरू हो गया। उन स्टेट्स ने बगावत करना शुरू कर दी। इसके साथ साथ जो है वो रशिया की इकॉनमी जो है वो फर्दर फिर इंटरनल इश्यूज़ को भी रिजॉल्व नहीं कर सकी, लोगों की ज़रूरियात को रिजॉल्व नहीं कर सकी और उसकी वजह से वो कोलैप्स कर गई। और क्या हुआ कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई और बस अब फिर एक छोटा सा टुकड़ा रशिया का रह गया, ऑल्दो कि वो भी बहुत बड़ा है, मगर उससे भी बहुत बड़ा था पहले, जो कि सोवियत यूनियन के नाम से मशहूर था। और 1945 कोल्ड वॉर एरा के अंदर जो है वो वो बना था सोवियत यूनियन, यानी बहुत ज़्यादा एज अ सुपर पावर क्रिएट हो गया था और 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ। China has expanded its investments in Africa and Asia and has bought many shares there. जी, चाइना का अब ज़्यादा ध्यान जो है वो अफ्रीका के अंदर है, एशिया के अंदर तो है ही है, मगर अफ्रीकी ममालिक में भी पहले लोग जो है एक्सप्लोर करने नहीं जाते थे और डरते थे, बट चाइना ने जो स्टेप्स लिए और वहाँ जाके जो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की, स्पेशली एंगोलियन ऑयल कंपनी एंगोला के अंदर मौजूद है, वहाँ चाइना जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है और वहाँ से फ़ायदा उठा रहा है। इसी तरह से जो है बहुत सारी मिनरल्स और रॉ मटेरियल जो मौजूद है अफ्रीकन ममालिक के अंदर, जिनको वो ख़ुद एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव मशीनरी, दे डोंट हैव रिसोर्सेज टू एक्सट्रैक्ट दोज मिनरल्स, वैल्यूएबल मिनरल्स। तो चाइना उनको वहाँ हेल्प आउट कर रहा है। अच्छा, अफ्रीका के ममालिक चूँकि जो है वो गोल्ड माइंस और वहाँ पे जो है वो डायमंड माइंस हैं, तो इसलिए भी जो है वो चाइना ने अपना ध्यान वहाँ रखा हुआ है और स्पेशली ऑयल की वजह से और फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, this shows their great influence and impact on both of the region. Now European states are also moving towards the African regions to invest and expand their economic webs. जी, चाइना के देखा देखी अब यूरोपियन स्टेट्स आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स अफ्रीका, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग देयर और अपने इकनॉमिक वेब्स को बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी इकॉनमी जो है वो फर्दर पावर को गेन कर सके।
अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चाइना's contemporary status. As it's known that corona outbreak started from China, जी it is very much evident that चाइना में ही स्टार्ट हुआ था. सो चाइनीज़ इकॉनमी वॉज इन अ टेंस सिचुएशन. चाइना की इकॉनमी टेंस सिचुएशन में आ गई थी. ज़ाहिर है परेशान थे और बहुत ज़्यादा बर्डन का शिकार हो गए थे. और ज़ाहिर है वायरस जब वहीं से क्रिएट हुआ था तो वो लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी हो गए थे. Many conspiracy theorists believe that virus was prepared in the labs of US to defect China's economy. ये भी बिलीव किया जाने लगा कि जो है वो चाइना को की इकॉनमी को तबाह करने के लिए यूएस ने जो है इस वायरस को क्रिएट किया है, क्योंकि यूएस एक राइवल है चाइना का और चाइना डायरेक्ट जो है चैलेंज करता है यूएस की सुपीरियॉरिटी को इकोनॉमिक पावर को की वजह से. तो इसलिए जो है यूएस हमेशा कोशिशें करता रहता है कि किसी तरह चाइना को जो है वो पीछे कर सके, कि उसकी इकॉनमी को डिफेक्ट कर सके. तो बेसिकली ये बिलीव किया जाने लगा कि कोरोना वायरस की इमरजेंस भी जो है वो यूएस ने अपनी लैब्स में अपने साइंटिस्ट के थ्रू करवाई है और उस वजह से जो है चाइना की इकॉनमी को ख़तरा है और चाइना की इकॉनमी को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं. इट हैड put negative impact on every state's economy and none are safe from it. अच्छा, यूएस अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सही होती तो अब इससे ये फ़ायदा तो नहीं हो सका कि सिर्फ चाइना की इकॉनमी को नुकसान हो, बल्कि जो है वो दुनिया भर की इकॉनमीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरे का शिकार हो गई हैं और डिक्लाइन का शिकार हैं. ख़ास तौर से इटली में नज़र आती है, यूएस इटसेल्फ अब उसको भी बहुत ज़्यादा मसला है और भी हमें बहुत सारे ममालिक नज़र आते हैं जो इसकी वजह से बहुत ही परेशानी का शिकार हैं. एंड दे आर नॉट एबल टू कम अप टू देयर प्रीवियस कंडीशन. अभी वो बहुत डिक्लाइन में है. China's economy also shrank for the first time in decades in the first quarter of the year as the virus forced factories and businesses to close. जी, चाइना की इकॉनमी को भी ख़तरा हुआ और चाइना की इकॉनमी बंद भी हुई, उस डिक्लाइन का शिकार भी हुई बिकॉज वायरस फैक्ट्रीज़ एंड बिजनेसेस वर क्लोज ड्यू टू लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग. सब लोग अपने घर में बैठे हुए थे और ज़ाहिर है कि काम नहीं हो पाया.